मलबेरी पब्लिकेशन 8 स्टैंडर्ड में जो शॉर्ट स्टोरी है द प्राइज पोयम बाय पी.जी. वुडहाउस इन्होंने लिखी हुई, ये आज हम हिंदी और इंग्लिश दोनों एनिमेशन और एक्सप्लेनेशन भी देखने वाले हैं। लेकिन इसके पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब ऑलरेडी कर लिया है तो अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजिए कि ये बहुत अच्छा है और इसे जल्दी से सब्सक्राइब करने के लिए शेयर कीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं अब इंग्लिश एनिमेशन। Now, for what purpose did I summon you three boys? Asked Mr. Percival of Smith, Montgomery and Morrison in his room after morning school that day. He generally began a painful interview with this question. The method had distinct advantages. If the criminal were of a nervous disposition, he would give himself away upon the instant. In any case, it was likely to startle him. For what purpose? Repeated the headmaster, fixing Smith with a glittering eye. I will tell you. Continued Mr. Percival. It was because I desired information, which none but you can supply. How comes it that each of your compositions for the poetry prize commences with the same 4 lines? The three poets looked at one another in speechless astonishment. Here, He resumed. are the 3 papers. Compare them. Now, After the inspection was over. what explanation have you to offer? Smith, are these your lines? I wrote them, sir. Don't prevaricate, Smith. Are you the author of those lines? No, sir. Ah, very good. Are you Montgomery? No, sir. Very good. Then you, Morrison, are exonerated from all blame. You have been exceedingly badly treated. You can go, Morrison. But, sir, Well, Morrison, I didn't write them, sir. I don't quite understand you, Morrison. You say that you are indebted to another for these lines? Yes, sir. To Smith? No, sir. To Montgomery? No, sir. Then, Morrison, may I ask to whom you are indebted? I found them in the field on a piece of paper, sir. He claimed the discovery himself, because he thought that Evans might possibly prefer to remain outside this tangle. So did I, sir. This from Montgomery. Mr. Percival looked bewildered, as indeed he was. And did you, Smith, also find this poem on a piece of paper in the field? There was a metallic ring of sarcasm in his voice. No, sir. Ah, then to what circumstance were you indebted for the lines? I got Reynolds to do them for me, sir. Montgomery spoke. It was near the infirmary that I found the paper, and Reynolds is in there. So did I, sir, said Morrison incoherently. Then, am I to understand, Smith, that to gain the prize you resorted to such underhand means as this? No, sir. We agreed that there was no danger of my getting the prize. If I had got it, I should have told you everything. Reynolds will tell you that, sir. Then, what object had you in pursuing this deception? Well, sir, the rules say everyone must send in something, and I can't write poetry at all, and Reynolds likes it, so I asked him to do it. And Smith waited for the storm to burst, but it did not burst. Far down in Mr. Percival's system lurked a quiet sense of humor. He remembered the examiner's letter, and it dawned upon him that there are few crueler things than to make a prosaic person write poetry. You may go, He said, and the three went. And at the next board meeting it was decided, mainly owing to the influence of an exceedingly eloquent speech from the headmaster, to alter the rules for the 6th form poetry prize, so that from thence onward no one need compete, unless he felt himself filled with the immortal fire. इस स्टोरी को हम सुनते हैं हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। फिर से एक बार बोलती हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए, और चलिए द प्राइज पोयम पी.जी. वुडहाउस का जो है वो हम देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये सेकंड पार्ट है। यहाँ पे हेडमास्टर जो है ये स्मिथ को, मॉन्टेगमोरी को और मॉरिसन को पूछ रहे हैं बार बार कि तुम तीनों ने लिखी हुई पोयम जो है इसके 4 लाइन्स हैं, ये तीनों के भी सेम क्यों आ रहे हैं। और तीनों के तीनों बेचारे बहुत साइलेंट, अपनी नज़रें झुकी हुई है
कभी कभी एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, हैरान परेशान हो रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, हम तीनों की लाइनें 4 लाइनें बराबर सेम कैसे आ सकती है। और हेडमास्टर बहुत चकरा के बोल रहे हैं कि देखो, मैं अगर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो इसका आंसर देने के लिए भगवान नहीं आएगा, तुम तीनों में से किसी को तो बोलना पड़ेगा, तुम्हारा साइलेंस मतलब तुम्हारा आंसर नहीं होता है। और वो एक के बाद एक बच्चे को पूछना शुरू कर देते हैं, लेकिन तीनों में से कोई भी कुछ बोलने के लिए रेडी नहीं है। फिर हेडमास्टर जो है वो खुद ही अपने आप बोलना शुरू कर देते, ओके एटलीस्ट मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ एटलीस्ट तुम उसका जवाब दो। वो चमकती हुई आंखों से स्मिथ की तरफ देखते हैं और स्मिथ को बोलते हैं, बेटा स्मिथ देखो 4 लाइन्स सभी की सेम आती है, तुम खुद ही देख लो, तीनों के तीनों अच्छे से देख लो, ऐसे कैसे हो सकता है ये मुझे बताओ कि 4 लाइन्स तीनों बच्चों की सेम, बाकी नीचे वाली सब लाइन अलग अलग है। तो स्मिथ तुम बोलो ये क्या तरीका है। मॉन्टेगमोरी, मॉरिसन तुम बताओ। अच्छा ठीक है, तुम ये बताओ कि तुमने खुद लिखी है क्या नहीं। ऐसे जब वो एक बच्चे से पूछते हैं तो जैसे ही वो मॉन्टेगमोरी को पूछते हैं तो वो बोलता है कि ये उसने नहीं लिखा है, 4 लाइन जो है वो उसे कहीं से मिली है, उसके आगे का उसने लिखा है। फिर बाद में मॉरिसन को पूछते हैं कि मॉरिसन अच्छा ठीक है, तुम बताओ ये 4 लाइनें और ये पोएम किसने लिखी है। वो भी वही बताता है कि ये 4 लाइनें जो थी ये मुझे रेडीमेड मिली थी फील्ड में, खेत में जहाँ पे मैं गया था, और वहाँ से मैंने इसके आगे का फिर मैंने खुद लिखा है। फिर हेडमास्टर जो है वो स्मिथ की तरफ देखते हैं और स्मिथ को बोलते हैं कि ये तुमने लिखा है। तो वो भी वही बोलता है कि 4 लाइनें मुझे मिली है, आगे का मैंने लिखा है। तो स्मिथ की तरफ देख के हेडमास्टर बोलते हैं कि 4 लाइनें तुमने, अच्छा ठीक है। तो मॉन्टेगमोरी जो है तुम मुझे बताओ कि तुमने बहुत अच्छे से बताया है कि तुमने कैसे रूपांतरित किया है, बाकी के बच्चे पकड़े गए हैं और तुम जा सकते हो, ऐसे वो उसे बोलते हैं। तो स्मिथ और जो मॉरिसन है ये एक दूसरे की तरफ देखते हैं, तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वो सोचने लग जाते हैं कि 4 लाइन जो है ये उनको पता है वो कहाँ से आई है और किसने ये लिखी है। एक्चुअली ये पोएम कंपटीशन जो है ये कंपटीशन ही ऐसा है कि हर एक को कुछ ना कुछ पोएम सबमिट करनी होती है और इन तीनों को पोएम लिखना नहीं आता है। तभी स्मिथ उनको यही बोलता है कि हेडमास्टर जी देखिए, ये पोएम कंपटीशन जो है जिसको पार्टिसिपेट करना है, जो रियल में पोएट है, जो लिखता है उसी को करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप ज़बरदस्ती सारे के सारे बच्चों को करने के लिए बोलते हैं और तभी ऐसे काम होते हैं। ये किसी बाहर के बच्चे ने नहीं लिखी है, ये रेनॉल्ड जो है ये रेनॉल्ड ने लिखी है। रेनॉल्ड इस पोएम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता था, वो लिखता भी था लेकिन उसकी मैगजीन में छप के नहीं आती थी, तो इसीलिए वो क्या करता, ये इसने कभी किसी को बताया नहीं कि वो पोएट्री लिखता है करके। हम जब उसे, वो बीमार है, वो हॉस्पिटल में है, मैं उसे मिलने गया, मैंने उसे बोला कि अरे यार कंपटीशन है और मुझे पोएम लिखना नहीं आता है, तू लिख के देगा क्या, तुझे आता है क्या? तो वो बोला हाँ मैं लिख के दूंगा करके, और उसने लिखना स्टार्ट कर दिया। उसके दूसरे तीसरे दिन जब बाद में मॉन्टेगमोरी और जो मैरिसन है ये भी वहाँ पे गए मिलने के लिए और इन्होंने देखा, कुछ नहीं देखा है, इन्होंने कुछ बोला भी नहीं, लेकिन ये जब उसको मिलने के लिए जा रहे थे तो इनको वहाँ पे हॉस्पिटल के बाहर जो गार्डन है वहाँ पे ये कागज़ पड़े हुए मिले थे और ये रेनॉल्ड ने ही लिखे हुए थे 4 लाइनें, इसीलिए तीनों बच्चों की सेम आ रही थी। तो ये सब स्मिथ ने जब प्रिंसिपल को बताया, प्रिंसिपल बहुत कॉमिक आदमी है, उन्होंने ये सोचा कि रियल में हम किसी को ज़बरदस्ती कविता लिखने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, इसमें बच्चों का कोई दोष नहीं है। तो उन्होंने देख लिया और पहचान लिया कि इसमें सच्ची में कुछ ना कुछ इनको देना था, इसीलिए इन्होंने ये काम किया है, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। अगर इन्हें किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की होती तो शायद से ये इन्होंने ऐसा काम भी नहीं किया होता। तो फिर भी हेडमास्टर जो है, ये हेडमास्टर उनसे बोलते हैं कि ठीक है नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं होगा। लेकिन स्मिथ का जो बोलना था कि पोएम कंपटीशन में पोएम लिखने के लिए किसी को ज़बरदस्ती ना की जाए और ये जो कंपटीशन रखी जाती है ये भी ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, किसी को करना है तो कर दे, नहीं करना है तो नहीं करें। हेडमास्टर उसे बोलते हैं कि हाँ ठीक है, मैं नेक्स्ट जब बोर्ड मीटिंग होगी उसमें ये बात ज़रूर कहूँगा, और वो तीनों बच्चे से प्रॉमिस करते हैं और वो सोचने लग जाते हैं
ये बहुत ही प्यारे इंसान है जो हेडमास्टर है वो। तीनों बच्चों ने आंखें खोल दी है उनकी, और ये तीनों बच्चों का जो कहना है, रेनॉल्ड जो बच्चा है वो पोएम लिखने वाला बच्चा है, लेकिन उसकी पोएम कभी आज तक किसी ने देखी नहीं, सोची नहीं, समझी नहीं, और कभी किसी मैगज़ीन में छप के भी नहीं आई थी। लेकिन उसकी 4 लाइन जो है आज लोगों को पता चलने के लिए मजबूर हो गए थे कि ये रेनॉल्ड ने लिखी हुई थी। और वो उन्हें लगता भी था कि वो खाली उन्हें देना है, उन्हें कोई प्राइज़ वगैरह लेना नहीं था। रूल ये था कि सबने लिखना है, इसलिए उन्होंने ये वहाँ पे दिया था। उनको कोई अवार्ड वगैरह नहीं चाहिए था। ये स्मिथ वहाँ पे डिक्लेयर कर देता है कि सर हमको कोई अवार्ड लेना नहीं था, कोई प्राइज़ लेना नहीं था, इसलिए हमने दिया, मैंने तो दिया था। बाकी इन तीनों ने भी, दोनों ने भी सेम वैसे ही किया होगा। अब बात आती है कि कंपटीशन जो रखी जाती है वो स्किल को बढ़ाने के लिए रखी जाती है, बच्चों को अपने स्किल को डेवलप करने के लिए, और ये बड़े हुए स्किल को प्राइज़ दिया जाता है इसलिए कि वो ज़्यादातर लिखे करके। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसे उल्टा हो रहा है कि पोएम उसको लिखना नहीं आता है, वो किसी और से लिखवा के अगर प्राइज़ मिलाएगा तो फ़ायदा ही नहीं है। हेड मास्टर की दिमाग में ये बात घुस जाती है कि ये तो बात सच है, कोई दूसरा पोएम लिखेगा और ये बच्चे ला के देंगे और उसके लिए उसे प्राइज़ मिल जाएगा, ये तो बड़ी गलत बात है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये रियल पोएम, ये पोएम जो है इसने लिखी है कि नहीं लिखी है? ये तो बात ये स्मिथ ने जो बोली है ये बिल्कुल सच बोली है कि प्राइज़ जो है उसी को देना चाहिए जो हमेशा लिखता है। और वो फिर उन तीनों को बोल देते हैं कि तुम चले जाओ, बोर्ड मीटिंग में मैं ये बात ज़रूर रखूँगा। और ये सोचते हैं और रखते भी हैं, बोर्ड मीटिंग में ये बता देते हैं। और ये बहुत सालों से जो पोएम कंपटीशन के लिए ज़बरदस्ती हो रही थी, सभी बच्चों को ज़बरदस्ती लिखवाने के लिए बोला जाता था, जो बच्चे कहीं से दूसरी जगह से लिखवा के लाते थे और उसके लिए उसको प्राइज़ भी मिल जाता था, ये सच्चे में गलत बात है। ये जो चैन थी पोएम की, कंपटीशन की, ये प्रिंसिपल ने बाद में तोड़ दी थी। और ये सोचने वाली बात है कि भाई पोएट्री लिखना, कविता करना, ये सभी के गुण में नहीं होता है, वो कुछ कुछ लोगों को ही भगवान ये देता है। तो अगर ये शॉर्ट स्टोरी आपको बहुत पसंद आई है, मेरा ये हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और पूरा वीडियो देखने के लिए मैं बहुत 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 आभारी हूँ। और ऐसे ही देखते रहिए हमारे इस चैनल को।